Good morning. So we have to learn one of the most important concept in the accounting is the discounts. There are two types of discounts: cash discount and trade discount. So लिख लेना accounting of discounts. Accounting of discount. There are basically two types of discounts. There are basically two types of discounts. ठीक है? One is trade discount. दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. Trade discount and cash discounts. Trade discount is a discount given on bulk purchases. Discount given on bulk purchases. Bulk purchases means when you purchase, my screen is visible or isn't? मैं फिर से शेयर करता हूँ. It should be basically now it should be right, should be visible. Now check. Virendra, I think it is visible. You can check it. Yeah. So what do you mean by trade discount? Trade discount is a discount given, right, on bulk purchases. When you purchase the goods in bulk, right, there is a discount that is called as which discount, right? Trade discount. What is the cash discount? Discount given, right, on prompt payment. Discount given on prompt payment. नहीं समझा सर, ध्यान देना, मैं समझाता हूं. ठीक है? There are two types of discounts. One, discount given on bulk purchases. Bulk purchases means purchases in quantity. Bulk purchases means purchases in quantity. अगर आप extra quantity में purchase करते हो, you get a discount. Like example, you purchase 10 quantity and you purchase only one quantity. Generally, when you purchase in bulk, when you purchase in large quantity, you can bargain with the seller, or generally seller on him, right, will give you discount for the purchasing in bulk. So the discount which is given for the bulk purchases, because उसका भी उतना धंधा हो रहा है ना, you are buying 10 quantities, 100 quantities, 2000 quantities like that. अगर आप बल्क में परचेस करोगे तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है ना, that is called as trade discount. And cash discount is given for the prompt payment. मतलब अगर ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेसिस पे है, मतलब you have sold the goods and buyer will pay you after 3 months. 3 months का क्रेडिट पीरियड है. So buyer will pay you after 3 months. Suppose buyer pays you within 2 months, means buyer is making early payment. It is always good to get money as early as possible. Now the buyer, try to understand,
the buyer receives the money, right? Buyer makes the payment, seller receives the money 1 month in advance. जो 3 months का क्रेडिट पीरियड था वो बोलता है मेरे पास पैसे, मैं जल्दी पे करना चाहता हूँ. So as he is gonna make payment early on a prompt basis, he will get discount. That discount is called as cash discount. Try to understand. The basic difference between trade and cash is the purpose. Trade discount is so that buyers will buy in a large quantities. हमारा सेल ज्यादा होगा उससे. They will buy not single quantity, they will buy in lump sum. ज्यादा क्वांटिटी उठाएंगे उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट. एंड कैश डिस्काउंट किसके लिए? बायर शुड मेक अर्ली पेमेंट. क्रेडिट पीरियड तो हमने उनको दिया है, बट क्रेडिट पीरियड के पहले ही वो हमें पे करे, इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट. लाइक मैं मेरे बायर को बोलता हूं यू हैव ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, बट इफ यू मेक द पेमेंट विद इन 1 month यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ, राइट, सपोज 2%. मतलब एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल. आई डोंट नो कितने लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्जर्व किया है. सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 2000 का एंड उन्होंने बोला है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 5th, सपोज 5th नवंबर एग्जांपल. अक्टूबर एंड में जो बिल आया है द अमाउंट इज 2000, बट इफ यू पे बिफोर 3rd November, if you pay before up to 3rd November you have to pay 1980, but if you pay after 5th November you have to pay 2030 rupees. अगर तुम लोग जल्दी पे करोगे you will get 20 rupees discount. बाद में पे करोगे तो यू हैव टू पे सम पेनल्टी, सम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का जाने दो, बट ये सोचो यू कैन गो एंड चेक एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू विल फाइंड लाइक दिस. कोई भी बिल उठाओ, बिकॉज जनरली बायर्स क्या करेंगे, लास्ट डेट तक वेट करेंगे पेमेंट करने के लिए. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. बायर्स विल वेट टिल द लास्ट डेट एंड वो लास्ट डे पे पेमेंट करेंगे. बायर्स विल वेट टिल द लास्ट डेट एंड वो लास्ट डेट पे पेमेंट करेंगे. तो जल्दी पेमेंट करें इसलिए एक डिस्काउंट दिया जाता है जिसका नाम है कैश डिस्काउंट. पर्पज ही अलग है. ट्रेड डिस्काउंट फॉर द वॉल्यूम, कैश डिस्काउंट इज फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट. नेक्स्ट आगे. इट इज calculated on gross amount, right? It is calculated on ग्रॉस अमाउंट है, आप इसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हो. इट इज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी और लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस. लिस्ट printed price. It is calculated on invoice price और बिल प्राइस, बिल अमाउंट. क्या है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. आई विल शो यू एग्जांपल एंड देन आगे. ठीक है, नेक्स्ट. Trade and cash. Trade discount is not recorded in the books of account.
recorded in the books of account. Cash discount is recorded in the books. It is recorded in the books. ठीक है? It is recorded in the books. आगे next. Trade discount is irrespective of. Trade discount is irrespective of. ठीक है? Trade discount is irrespective of cash or credit transaction. Cash discount is allowed, is calculated on cash component, including bank component, including bank. Obviously, cash means bank as well. And not credit. Not on credit. ठीक है? आगे नेक्स्ट. आगे ट्रेड कैश. एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं. सपोज दिस इज नवनीत पब्लिशर्स. पुणे. ठीक है, ध्यान देना. नवनीत पब्लिशर्स पुणे. देन Navneet Publishers Pune. Name of buyer. Let me first write it. Name of the buyer. Pragati Bookstore. पुणे. ठीक है, प्रगति बुक स्टोर पुणे. नेक्स्ट डेट. October 20. 15th October 20. आगे नेक्स्ट. बाकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी बट वी विल इग्नोर. पर्टिकुलर्स. Amount rupees. Particulars. Quantity. Rate rupees. I am ignoring GST and everything. I am ignoring GST and everything. आगे नेक्स्ट लिखो, लिखते चलो. फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड डाइजेस्ट. ठीक है, क्वांटिटी 10,000, रेट 100,
10 lakhs. Second, 12th standard digest. 15,000. सपोज 100 ही पकड़ के चलते हैं, 15 lakhs. हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें खाली समझना है. Therefore total 25 lakhs. Less discount at the rate of 20%. 25 lakhs का 20%, 5 lakhs. 20 lakhs. ठीक है. देन लिखो टर्म्स. इधर सिग्नेचर ऑफ नवनीत, वो स्टैम्प वगैरह करेगा. ठीक है. यहाँ पे बिल नंबर रहेगा, बिल नंबर एग्जाम्पल जो भी रहेगा. ठीक है. देन यहाँ पे लिखा होगा टर्म्स. Like if you have to check, pay by check should be drawn on like नवनीत पब्लिशर्स, ऐसे कुछ तो रहेगा. उसमें से एक टर्म्स लिखता हूं. ठीक है. The credit period is agreed is 2 months. Second, if paid within 1 month, additional discount of 5%. ओके. अब मैं थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग करता हूं, ध्यान देना. ठीक से लिखना. मैं क्यों लिख के दे रहा हूं, मतलब आपको एक इमेजिनेशन आ जाए, बाकी कुछ नहीं. और आगे से कोई बिल लेते ना, उसको पढ़ने का. ठीक है. पहले हम इग्नोर करते थे, बट आगे से उस बिल को पढ़ने का. कुछ भी बिल हो, घर में पढ़े होंगे तो देख लो. इसमें जीएसटी इंफॉर्मेशन भी होती है. नेक्स्ट लेक्चर में जीएसटी की एंट्रीज करने वाला है. सो एक एक चीज समझाते जा रहा हूं. देन जीएसटी होने के बाद हम थर्ड चैप्टर के एंट्रीज सब एंट्रीज कर सकते हैं. लिखो जैसे मैंने निकाला है, निकालो, ठीक से निकालना. फिर मैं इसकी एंट्री सिखाऊंगा. मतलब क्या, मैं हर चीज का मतलब समझाऊंगा. लिखो. और क्यों होते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, उसका पर्पस भी समझेंगे. ठीक है. हाँ लिखो लिखो, मैं समझाने वाला हूँ. लिखो, पहले लिखो तो ऐसे ही. पहले लिखो. आई विल, मैं हर चीज बोलता हूं, पहले लिखो सही. आपके पास होना चाहिए, मतलब आपको समझेगा. ठीक से लिखना.
लिखो जल्दी। ठीक से लिखना, होने के बाद मुझे बोल दो। अच्छा, गुड। ठीक है, आगे देखो। पहले तो क्या हुआ है, ध्यान देना। देयर आर टू पार्टीज, नवनीत पब्लिशर इज ए सेलर एंड प्रगति बुक स्टोर इज ए बायर। Navneet and Pragati has entered into purchase and sell transaction. ठीक है, the transaction is a credit basis. कैसे? Because यहाँ पे लिखा है the credit period is 2 months, means try to understand. Navneet has sold goods to Pragati. Navneet is seller, Pragati is a buyer. नवनीत के बुक्स में सेल्स की एंट्री होगी, प्रगति के बुक्स में बायर की एंट्री होगी ऑन दिस डेट। ठीक है, द क्रेडिट पीरियड इज 2 months, मतलब जो 15 अक्टूबर को सेल हुआ है उसका पेमेंट प्रगति सपोज टू मेक बाय 15 दिसंबर 2020, 2 months के भीतर। ठीक है, नाउ आगे ध्यान देना। The total purchase and sale is of 25 lakhs, but you can see the quantity purchased is in volume, not one book, two books. It is a 10,000 books, 15,000 books, and therefore Pragati has received or Navneet has given discount at the rate of 20%. 25 lakhs ka 20%. This discount is a trade discount. This discount is a trade discount. So एक और डिफरेंस लिख लेना, ट्रेड एंड इसमें लिखो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड is shown as a deduction, is shown as deduction from bill, from invoice. Invoice means bill. Trade discount is shown as a deduction from the bill. ठीक है, then आगे it is never shown as deduction from invoice. मैं क्यों बोल, ध्यान देना। ठीक है, it depends on their customer relationship. किसी को क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, डिपेंड्स ना। क्रेडिट पीरियड इज एग्रीमेंट बेसिकली। जनरली लोग आजकल क्रेडिट पीरियड सेम रखते हैं, मतलब सबके लिए सेम रहेगा, तो वो ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं।
सबको सेम 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड। उससे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बना रहता है आपका बायर्स का, ठीक है, आप पे। सो इट इज बेटर टू गिव सेम क्रेडिट पीरियड. So Navneet is a seller, Pragat is a buyer. Navneet has sold goods of rupees 25 lakhs. This is MRP price. MRP मतलब पता है ना आपको, वो प्रिंटेड प्राइस होती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, प्रिंटेड प्राइस. जो बुक्स प्रगति ने परचेस किए ना, वो 25 लाख प्रिंटेड प्राइस के MRP पे, एंड दे हैव गिवन यू additional discount. That discount is called as what? ट्रेड डिस्काउंट. तो मैंने वहां पे लिखा है. सो 25 lakhs के गुड का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पे 5 lakhs का डिस्काउंट मिला है. दैट डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट. मतलब सिंपल वर्ड्स में, प्रगति हैज परचेज गुड्स ऑफ 20 lakhs फ्रॉम नवनीत. प्रगति आगे से क्या बोलेगा, इनका बिल कितने का हो गया फाइनल? 20 lakhs. फाइनल बिल कितने का? 20 lakhs. सो दोनों के बुक्स में ट्रांजैक्शन कितने का दिखेगा? 20 lakhs. नवनीत के बुक्स में सेल का ट्रांजैक्शन दिखेगा 20 lakhs, प्रगति बुक्स में सेल का ट्रांजैक्शन दिखेगा 20 lakhs. ये सब इग्नोर किया जाएगा, ये सब चीजें इग्नोर की जाएगी एंट्री करते टाइम. बिल कितने का बना है? बिल 20 lakhs का बना है. सो प्रगति के बुक्स में परचेस की एंट्री दिखेगी 20 lakhs, नवनीत के बुक्स में 20 lakhs की एंट्री दिखेगी. अगर ध्यान देना, अब क्रेडिट पीरियड क्या है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 15 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ है 2020. व्हाट इज द ड्यू डेट? 15 दिसंबर 2020. ये जो 20 lakhs का ट्रांजैक्शन हुआ है, भूल जाओ कि 25 lakhs का ट्रांजैक्शन था, भूल जाओ कि आपको 5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, वैसे भी उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं. आपके लिए 20 lakhs का बिल बना है. अब फाइनल वैल्यू देखो, बाकी गया भाड़ में, लास्ट की वैल्यू देखनी. हमें 20 lakhs का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैंने बोला है, राइट, डिस्काउंट इज गिवन ऑन बल्क परचेसेस, इट इज कैलकुलेटेड ऑन MRP प्राइस और लिस्ट प्राइस. MRP का दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस, या कोई लोग उसको प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, ठीक है. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मींस इट इज इग्नोर्ड, इनटू ब्रैकेट इग्नोर्ड. ये इग्नोर करना होता है, उसको इग्नोर करो. 5 लाख को इग्नोर करो, 25 lakhs को इग्नोर करो, ठीक है, बिकॉज वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं. हमारे लिए ट्रांजैक्शन 20 lakhs का ही है आगे, ठीक है. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ट्रेड डिस्काउंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ए ट्रांजैक्शन, इज कैश और क्रेडिट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस. किसी बिल में से अगर माइनस किया हुआ डिस्काउंट दिखेगा कभी लाइफ में, तो समझ लेना इट इज ए ट्रेड डिस्काउंट. It is which discount? Trade discount. The seller is not going to record that amount. वो डायरेक्टली फाइनल वैल्यू रिकॉर्ड करने वाला है, बिकॉज वो बोलेगा मेरा सेल 20 lakhs का है, बायर बोलेगा मेरा परचेस 20 lakhs का है. सो 20 lakhs का ट्रांजैक्शन हो गया, तो भूल जाओ कि 25 lakhs का था, भूल जाओ कि 5 लाख का ट्रेड डिस्काउंट था. आगे से खाली क्या बोलना है? 20 lakhs का परचेस है, 20 lakhs का सेल है. एज सिंपल एज दैट. गजनी बनना है आपको टू सम एक्सटेंट. देन आगे इसकी ड्यू डेट क्या है? 15th December. मतलब प्रगति हैज टू पे 20 lakhs बाय और ऑन और बिफोर 15th December, 2 months. एक 2 months का क्रेडिट पीरियड दिया है. ऑन 15th November 2020, एक मंथ पहले ही. प्रगति को कब पे करना है आप मुझे बोलो? प्रगति को 15 दिसंबर को पे करना है. प्रगति, नो वन कैन फोर्स प्रगति टू पे बिफोर 15th December. नवनीत कैन नॉट फोर्स प्रगति टू पे 20 lakhs बिफोर 15th December, बिकॉज आपने खुद होके क्रेडिट पीरियड बोला है 15th December. कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्रेडिट पीरियड में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता. वॉलंटरली क्रेडिट क्यों देते हैं? सो दैट बायर्स इंक्रीज हो. क्रेडिट देने से बायर्स अपने पास आते हैं कि चलो हमें टाइम है पेमेंट के लिए,
सो योर सेल्स इंक्रीजेस, डेटर्स इंक्रीजेस, सेल्स इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है, बायर्स इंक्रीजेस क्रेडिट पीरियड देने से। सो आप आपके फायदे के लिए क्रेडिट पीरियड दे रहे हो कि वो बायर किसी और जगह पे ना जाए, हमसे ही परचेस करे, इसलिए हम क्रेडिट पीरियड देते हैं। एंड फिर 2 मंथ्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर प्रगति ऑन हिज ओन, प्रगति ऑन हिज ओन क्या लिखा है देखो, इफ पेड विद इन 1 मंथ, एक हमने लालच दिया है, तुम्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, वी विल नॉट फोर्स यू टू मेक द पेमेंट बिफोर 15 दिसंबर। नवनीत प्रगति को बोल रहा है, वी हैव गिवन यू क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, वी हैव गिवन यू क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, वी विल नॉट फोर्स यू कि 20 लाख तू पे कर, बट एक इंसेंटिव देंगे, फोर्स नहीं करेंगे बट इंसेंटिव देंगे। क्या इंसेंटिव है? आपके घर वाले जैसे, आप पढ़ाई करो इसलिए आपको फोर्स नहीं करते, बोलते अगर तुम पास हो गए तो तुझे बाइक देंगे, तुझे मोबाइल देंगे, तुझे जो चाहिए वो देंगे। एक है फोर्स करके आपको पढ़ाई करना, उसमें आप नहीं करोगे। बट अगर आपको इंसेंटिव दिया जाता है, गाजर दिखाया जाता है, तो यू विल डू इट। सिमिलरली प्रगति पे करने वाला है 15 दिसंबर को, तो नवनीत दिमाग नहीं लगाया। क्या दिमाग लगा? अगर जल्दी पैसे उनको फोर्स करके तो नहीं देंगे, बोलेंगे आपने 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है, बट अगर हमको गाजर दिखाएंगे ना तो जल्दी पे करेंगे। सो इट इज इफ पेड विद इन 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ में पे करते हो तो हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देंगे। मतलब एनी टाइम अगर इस पीरियड में अगर आप पे करते हो, इस पीरियड में अगर आप पे करते हो तो यू हैव टू पे 20 lakhs लेस, लेस कितना? 5%। 20 lakhs का ही 5%। अब ये मत बोलना कि सर 25 लाख का 5%, नहीं नहीं 20 lakhs का। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 25 लाख पे निकाला गया। ये जो 5 lakhs का ट्रेड डिस्काउंट है ना, यहाँ पे बिल में दिख रहा है, वो किस पे निकाला गया है? राइट, प्रिंटेड प्राइस पे, एमआरपी पे। एंड मतलब प्रिंटेड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज योर इनवाइस वैल्यू, एंड उस इनवाइस वैल्यू पे कैश डिस्काउंट बनता है। लिखा होगा मैंने कहा पे, राइट। It is calculated on invoice price, that is of the right value after TD, value after TD, TD means trade discount, CD means cash discount, TD CD ये बहुत कॉमन वर्ड्स है। देखो क्या बोला मैंने, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग TD। मतलब वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग क्या होता है? इनवाइस वैल्यू। वो जो नेट अमाउंट लिखा है ना वो इनवाइस वैल्यू है। 20 lakhs इज इनवाइस वैल्यू, उस पे आएगा, 25 लाख पे नहीं आएगा, ठीक है। सो देखो इसका 5 lakhs, 20 lakhs का 10%, लास्ट डिजिट करो 2 lakhs आएगा, हम चाहिए 1 लाख, तो कितना पे करना होगा? 19 lakhs, और 1 लाख बचेगा। बट इफ यू पे विद इन दिस पीरियड यू हैव टू पे 20 lakhs, यू वोंट गेट एनी डिस्काउंट, तुम कभी भी पे करो। तो ऐसे केसेस में सोचेगा ना प्रगति वाला भी, अरे मैं 1 मंथ में पे करूंगा तो 1 लाख बचेगा। देखो ना कितना लॉजिकल बिजनेस है। वही मैं सिखा रहा हूं, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है। फोर्स करेंगे तो देंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं देंगे? आपने एग्रीमेंट किया है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने खुद होके बोला है कि 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड, वो कैसे आपको जल्दी पे करेगा? बट अगर आपको उसको इंसेंटिव दोगे, उसको गाजर दिखाओ तो वो करेगा। आपने क्या गाजर दिखाया? तुझे और डिस्काउंट दूंगा। द एडिशनल डिस्काउंट यू आर गिविंग फॉर द मेकिंग पेमेंट अर्ली प्रॉम्प्ट बेसिस पे, दैट डिस्काउंट इज अ कैश डिस्काउंट। 1 मंथ के भीतर पे कर, तुझे मैं और 5% दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट यस, जो पहले का 10% था वो एमआरपी प्राइस पे था, एंड बाद का 5% है वो एमआरपी प्राइस का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो इनवाइस वैल्यू आई थी ना उसका है। सो दिस इज एमआरपी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एमआरपी प्राइस। या एक सेकंड, मैं थोड़ा अलग पेन से लिखता हूँ, दिस इज एमआरपी, 25 lakhs इज एमआरपी, और ये 20 lakhs है ना, इनवाइस वैल्यू है। मतलब अगर 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 इसका नाम क्या, प्रगति पेज विद इन 1 मंथ, 15 नवंबर तक पे करते तो उनको कितना पे करना होगा? 19 lakhs।
बट अगर 15 नवंबर के बाद पे करते हैं तो उनको कितना पे करना होगा, 20 लाख। सो कैश डिस्काउंट अवेल करना है नहीं करना है, ये किसकी मर्जी है, डेटर की मर्जी है, ये बायर की मर्जी है। बट ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट आप पेमेंट आज करो या 10 दिन के बाद करो, 1 मंथ के बाद करो, या विद इन क्रेडिट पेड करो, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट यूनिवर्सल है, कैश डिस्काउंट यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए वो बिल में नहीं आता। बिकॉज पहले बिल बनेगा और बाद में पैसा आएगा, पहले बिल जनरेट होगा फिर पैसा आएगा। तो वो 20 लाख आएगा अगर 1 मंथ के बाद पे होता है, या 19 लाख आएगा अगर 1 मंथ के पहले पे होता है, मतलब विद इन 1 मंथ पे होता है तो 19 लाख आएगा, आफ्टर 1 मंथ पे होता है तो 20 लाख आएगा। कितना देगा वो फ्यूचर है, आई डोंट नो। इसलिए CD इज नॉट, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बिल। अब लिख लेना ये डायग्राम निकालो। एंड नाउ आई विल टीच यू द एंट्रीज। कुछ समझा या नहीं समझा अभी तक, थोड़ा फार? मेक इट फास्ट। ठीक है, अच्छा। पर्पस देखो, पर्पस समझो, पर्पस। जल्दी रिसीव करने ना पैसे तो सीडी देना पड़ेगा, ज्यादा सेल करना है ना तो टीडी देना पड़ेगा। सर कोई बोलेगा सर ऐसे हो सकता है क्या कि प्रगति वाला बोलेगा आप मुझे तो 20% तो देने वाले हो, मैं आज ही पे करता हूं। तो आज ही पे कर, हमने क्या डिसाइड किया है, 1 मंथ के भीतर तू कभी भी पे कर, आज से 1 मंथ के भीतर कभी भी पे कर, तुझे हम 5% देंगे। सो तू 15 को ही पे कर, 20 को पे कर, 31 को पे कर, या 15 नवंबर को पे कर, तुझे हम 1 लाख का डिस्काउंट देंगे और देंगे। दिस इज वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिजनेस करने का तरीका है। यस प्रॉफिट विल इंक्रीज, बट अगर तुझे ये समझ में आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलोगे सर इसमें फायदा किसका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अगर 1 मंथ के भीतर पैसा आएगा, नवनीत विल रिसीव 19 लाख। अगर वो 19 लाख 1 मंथ भी बैंक में डालेंगे तो भी उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। यू डोंट, यू आर नॉट गेटिंग मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर अगर जितना जल्दी पैसे आए ना, इट इज ऑलवेज बेटर देन, बिकॉज नवनीत ऑल्सो रिक्वायर्स मनी। अगर नवनीत वाले ये 90 लाख बैंक में डालेंगे तो भी उनका 1 मंथ का इंटरेस्ट इससे ज्यादा होगा, तो ही वो डिस्काउंट देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी पैसे आएंगे सपोज डिस्काउंट, तो वो बोलेंगे ना 1 लाख का लॉस हुआ है, बट अगर वो पैसे में यूज करता हो 1 लाख से ज्यादा कमाता हो। लोग क्यों लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं 10% से और कमाते हैं 15% से सपोज, तो इंटरेस्ट देना है 10% और कमाएंगे 15%, तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया, 5%। दिस इज बिजनेस। सो हाउ यू यूज मनी, हाउ यू मैनेज द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना डिस्काउंट देना है आपको समझ में आना चाहिए, आप कितना कमाते हो उस पैसे पे। जल्दी पैसे लेके अगर वो आइडल रहने वाले हैं, देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग डिस्काउंट। जल्दी पैसे आके आप कैश हाथ में रखने वाले हो, उसका कोई फायदा नहीं। आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, आपका सपोज एग्जांपल, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है। नवनीत रिक्वायर्स मनी सो दैट दे कैन मेक पेमेंट टू देयर पेपर सप्लायर्स, पेपर जो सप्लाई करता है, और उनको पेपर सप्लायर को पेमेंट करना है 20 लाख। कितना करना है, 20 लाख। सपोज ये नवनीत है, ये प्रगति है, और ये पेपर सप्लायर है, ठीक है। इनको 1 लाख का डिस्काउंट देके 19 लाख लिए। नवनीत हैज टू पे, सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कितना लेते हैं हम, 22 लाख टू पेपर सप्लायर एग्जाम्पल। एंड अभी इस ये जो पैसे आएंगे इधर पे करेंगे, और पेपर सप्लायर बोलता है मैं आपको 3 लाख का डिस्काउंट देता हूँ, 19 लाख। सोचो ना, इससे पैसे लिए, 1 लाख उसको डिस्काउंट देके आपने इसको चुकाया, आपका फायदा कितना हुआ, आपको यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला, 3 लाख, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ा, 2 लाख, तो 1 लाख, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख।
लोग क्यों देते हैं, कुछ तो रीजन रहेगा ना, ऐसे टाइम पास बोल के थोड़ी देंगे, बिजनेस है। इसको 1 लाख का डिस्काउंट दिया प्रगति वाले को, और फिर हमने डिस्काउंट लिया किसी और से 3 लाख का एग्जाम्पल, तो फायदा ही हुआ ना आपका। आप डिस्काउंट कब दोगे, तो आपका कैलकुलेशन रहेगा ना बैक एंड पे कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा लॉस कितना होगा। ऐसे किसको भी कैसे डिस्काउंट नहीं दिया जाता ना, ठीक है। अप टू 20,000 इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। मैडम ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस हुआ है, 5 लाख से ट्रेड डिस्काउंट, 5 लाख ट्रेड डिस्काउंट है, फिर आया 20 लाख, 20 लाख का 5%, 1 लाख इज ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख इज अ कैश डिस्काउंट। अब एंट्री समझो, मतलब आपको और क्लिक हो जाएगा, लिखो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, मैं कैसे लिखता हूं ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, पहले नवनीत लिखेंगे और यहां पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ प्रगति। इन द बुक्स ऑफ नवनीत, इन द बुक्स ऑफ प्रगति, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री, नवनीत ने सेल किया, तो उनके बुक्स में किसको सेल किया, प्रगति को, प्रगति बन गया बायर डेटर, प्रगति अकाउंट डेबिट, प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का सेल हुआ, 20 लाख। क्या एंट्री आ गई, प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है, मैंने डायरेक्टली एंट्री लिखी है। अब मैं हमेशा वो डेबिट क्रेडिट का वो चार्ट नहीं करा करते बैठूंगा। प्रगति बिकम डेटर, नवनीत के लिए प्रगति इज ए डेटर, तो डेबिट किया, सेल्स इज इनकम, क्रेडिट किया। आई हैवंट रिकॉर्डेड 25 लाख, मैंने पहले उसको कट किया है आपको समझने के लिए, मेरे लिए आगे से 20 लाख का ट्रांजैक्शन है। सो प्रगति ने सेल किया, नवनीत ने प्रगति को सेल किया, प्रगति परचेज द बुक्स, दैट इज उनके लिए गुड्स है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, प्रगति के लिए परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना, 20 लाख। परचेसेस डेबिट होंगे, सेल्स क्रेडिट होता है बिकॉज इनकम होता है, परचेस डेबिट होता है बिकॉज वो एक्सपेंस होता है। टू, प्रगति के लिए नवनीत कौन हो गया, क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर कोई है आपका तो उसको क्रेडिट करो, नवनीत 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। देखो बहुत लॉजिकल चीज है, नवनीत के बुक्स में प्रगति डेटर है, नवनीत के बुक्स में प्रगति डेटर है, तो प्रगति के बुक्स में नवनीत उल्टा होना चाहिए, क्रेडिटर। इन द बुक्स ऑफ प्रगति नवनीत क्रेडिट है, उल्टा। अगर मैं किसी को पापा बोलता हूं तो मेरे उन्होंने मुझे बेटा बोलना चाहिए, उन्होंने भी मुझे पापा नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं नवनीत प्रगति को डेटर बोलता है तो प्रगति ने नवनीत को क्रेडिटर बोलना चाहिए। अगर नवनीत प्रगति को डेटर बोलता है तो प्रगति ने नवनीत को क्या बोलना चाहिए, क्रेडिटर। अगर नवनीत के लिए सेल है तो प्रगति के लिए क्या रहेगा, परचेस रहेगा, एग्जैक्टली उल्टा। आगे, अगर आपको एक के बुक्स में एंट्री समझ में आती ना, दूसरे के बुक्स में उसकी उल्टी एंट्री होगी। नेक्स्ट, इफ पेड आफ्टर 1 मंथ, अगर 1 मंथ के बाद पे करते हो, नॉट एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट फॉर सीडी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। सीडी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, 1 मंथ के भीतर पे करोगे तो सीडी, अदरवाइज नो सीडी। नेक्स्ट, तो लिखो फर्स्ट सेकंड एंट्री, ठीक है। तो मुझे बोलो, अगर आप 1 मंथ के भीतर पे नहीं करोगे तो प्रगति को कितना पे करना होगा, नवनीत को। टाइप द अमाउंट, इफ नॉट पेड विद इन 1 मंथ, हाउ मच अमाउंट द प्रगति विल पे टू नवनीत, एनीवन, टाइप द अमाउंट। गुड गुड गुड, यस 20 लाख, परफेक्ट परफेक्ट। कितना पे होना करना होगा, 20 लाख। सो अब देखो, नवनीत के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी,
सॉरी नवनीत के बुक्स में रिसीट की एंट्री आएगी, दे रिसीव द मनी। प्रगति के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी। सो नवनीत रिसीव 20 lakhs, नवनीत रिसीव 20 लाख। जनरली 20 लाख कैश में कोई नहीं देगा, चेक में देगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 20 लाख। टू प्रगति अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रगति, बराबर। एंड प्रगति बुक के बुक्स में पेमेंट, प्रगति इशूड चेक, प्रगति के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी। किसको पेमेंट किया? नवनीत, नवनीत अकाउंट डेबिट। नवनीत क्रेडिटर था, पेमेंट करने पे वो क्रेडिटर नहीं रहेगा। क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब उसको रिवर्स करो, डेबिट करो 20 लाख। टू टू बैंक। ये एंट्री किसको नहीं समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई रेज द हैंड। ठीक है, देव है क्या? देव, अरे देव समझा? यस और नो? यू जॉइन लेट इसलिए मैं तुझे पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली। नहीं तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आई कैन अगेन एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहां तक क्लियर है? अच्छा अब देखो, सो दिस इज वन ऑप्शन। अकाउंट क्लोज हुआ है, कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ? देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो ठीक से। डेबिट क्रेडिट उल्टे होते हैं, डेबिट क्रेडिट अपोजिट होता है। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, वो माइनस होते हैं एक दूसरे से। डेबिट डेबिट ऐड होंगे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। डेबिट डेबिट ऐड होंगे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होंगे। डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं, हमने ट्रायल बैलेंस करते टाइम देखा था लास्ट टाइम। डेबिट क्रेडिट अगर एक ही अकाउंट में डेबिट है और एक ही अकाउंट को क्रेडिट है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, सो अब ध्यान देना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखो। प्रगति डेबिट 20 लाख, प्रगति क्रेडिट 20 लाख। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। 20 लाख डेबिट माइनस 20 लाख क्रेडिट इज जीरो। 20 लाख डेबिट, 20 लाख क्रेडिट, सेम अकाउंट बात कर रहा हूं, सेम अकाउंट इज जीरो। नवनीत के बुक्स में प्रगति का बैलेंस जीरो है, मतलब अभी नवनीत इज नॉट सपोज टू रिसीव एनीथिंग, बराबर है। प्रगति ने पूरा पेमेंट कर दिया। अब प्रगति की बुक्स में देखो, नवनीत क्रेडिट 20 लाख, नवनीत डेबिट 20 लाख। जितना क्रेडिट है उतना डेबिट है, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट है, जीरो। मतलब इवन प्रगति के बुक्स में भी नवनीत का अकाउंट क्या है? क्लोज हुआ है। होना ही चाहिए, जब आप पेमेंट पूरा करोगे तो अकाउंट तो क्लोज होना चाहिए, राइट। सो ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे चीजों पे आते जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछते चलो आगे। इफ, ये कब है? अगर आप एक मंथ के भीतर पे नहीं करते। इफ पेड विद इन 1 मंथ, एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। तो क्या होगा, ध्यान देना। इफ पेड विद इन 1 मंथ, सो मुझे बोलो, मुझे बोलो कितने का सेटलमेंट होगा? अगर आप एक मंथ के भीतर पे करते हो कितने का सेटलमेंट होगा? एवरीवन लिखो। बोलो। 90 लाख, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सो अब पेमेंट की एंट्री आएगी। चलो पेमेंट की एंट्री करेंगे।
सेकंड एंट्री, या तो ये एंट्री आएगी या तो ये एंट्री आएगी, ठीक है। लिखो, पेमेंट की एंट्री आएगी, लिखो क्या होगा, ध्यान देना। हमें इधर देखो, मैं नवनीत के बुक्स में बोल रहा हूं, हमें प्रगति से 20 लाख लेने हैं, हमें प्रगति से 20 लाख, नवनीत के लिए देखो, हमें प्रगति से 20 लाख लेने हैं, उसमें से 90 लाख ही आएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक कितने का मिलेगा, 19 लाख। चेक अब 20 लाख का नहीं मिलेगा, चेक मिलेगा 19 लाख का ही, ठीक है, चेक मिलेगा 19 लाख का ही। नेक्स्ट, सो 20 लाख में से 90 लाख आए, बाकी डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमने डिस्काउंट दिया, लॉस हो गया, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस, डिस्काउंट गिवन इज एक्सपेंस, लॉस, एक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit, how much, 1 lakh. 2, discount allowed account debit 2, right, pragati 20 lakhs, एंट्री आएगी, ठीक है। आगे, बैंक अकाउंट डेबिट 19 lakhs, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रगति अकाउंट क्रेडिट 20 lakhs, ये एंट्री आएगी। क्लियर है, यहां पे क्या एंट्री आएगी, मतलब देखो ना क्या हो गया, बैंक में आए खाली 19 लाख आउट ऑफ 20 lakhs, 20 lakhs आने चाहिए थे, उसमें से आए खाली 19 lakhs, सो इसमें 1 लाख का लॉस हो गया जो डेबिट किया गया एक्सपेंस अकाउंट को, जिसका नाम है डिस्काउंट। सो 1 लाख लॉस बुक हो गया, 1 लाख का अपने आप एक्सपेंस बुक हो गया, ठीक है। आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन बाय सेलर इज हिज लॉस, डिस्काउंट गिवन बाय सेलर इज हिज लॉस। नेक्स्ट, आगे यहां पे, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, 20 लाख का पेमेंट करना था, प्रगति के बुक्स में नवनीत को 20 लाख का पेमेंट करना था, बट कितने का पेमेंट किया, खाली 19 लाख, तो एंट्री क्या आएगी, देखो, नवनीत अकाउंट डेबिट, नवनीत क्रेडिटर है, देखो जब उसको पेमेंट करने जाओगे तो उसको रिवर्स हो जाएगा, नवनीत अकाउंट डेबिट 20 lakhs टू बैंक, टू बैंक 19 lakhs, टू टू बैंक्स 19 lakhs, टू डिस्काउंट रिसीव 1 लाख, बायर का गेन हो गया, क्यों गेन हो गया, डेटर का गेन हो गया, क्यों, बिकॉज उसको 20 लाख के बदले जस्ट 19 lakhs ही देने पड़े, मतलब ही उसको 1 लाख का गेन हो गया, क्रेडिट हो गया, इसका एक्सपेंस है, दिस इज लॉस, डेबिट, लॉसेस आर डेबिटेड, इसका गेन है, गेन सा क्रेडिटेड, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कंप्लीट, मेक इट फास्ट। अब 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना। सो जो जो डिस्काउंट देगा, सेलर गिव्स डिस्काउंट टू बायर, सेलर गिव्स डिस्काउंट टू बायर, सो सेलर का लॉस रहेगा, बायर रिसीव्स डिस्काउंट, बायर का गेन होगा, लॉस इज डेबिटेड, गेन इज क्रेडिटेड, ठीक है, लिखो जल्दी करो। नेक्स्ट, ठीक है, गुड। सो अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, एग्जांपल लिखो, X sold goods
of rupees 10 lakhs at TD 10%. X sold goods to Y of rupees 10 lakhs at 10% TD. Second, ठीक है, second. Y paid the amount after, right, 5% CD. Y ने बाद में पेमेंट किया आफ्टर 5% CD. तो ध्यान देना, सोल्यूशन, एमआरपी प्राइस कितनी है? एमआरपी इज 10 lakhs. इस पे लेस टीडी एट द रेट ऑफ 10%, 1 lakh. So it is 9 lakhs. ये बुक में रिकॉर्ड होगा. बुक में कितना रिकॉर्ड होगा? 9 lakhs. ठीक है, बुक में रिकॉर्ड होगा 9 lakhs. देन लेस, इसको बोला जाएगा इनवाइस वैल्यू. पहले इससे एंट्री आएगी, तो लिखो बिल ऐसे बनेगा 10 lakhs माइनस 1 lakh, 9 lakhs का बिल बनेगा. तो कितना रिकॉर्ड होगा? 9 lakhs. तो एंट्री लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स, in the books of X, in the books of Y. X is a seller, Y is a buyer. पहले परचेस सेल की एंट्री होगी फर्स्ट. ध्यान देना, क्या एंट्री होगी? X sold goods to Y of rupees 10 lakhs at 10% TD. आप 10 लाख की एंट्री नहीं लिखोगे, ना ही आप 1 लाख रिकॉर्ड करोगे. आप रिकॉर्ड करोगे डायरेक्टली इनवाइस वैल्यू 9 लाख. टीडी माइनस होने के बाद की एंट्री आएगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद की एंट्री आएगी. तो लिखो एंट्री क्या आएगी, ध्यान देना. ठीक है, एंट्री आएगी एक्स के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी. एक्स के लिए वाई डेटर हो गया. वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 lakhs 9 lakhs. वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 lakhs 9 lakhs. वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 lakhs 9 lakhs. एंड वाई के लिए परचेस की एंट्री आएगी बिकॉज ही हैज परचेस द गुड्स. परचेस हमेशा डेबिट होता है, परचेस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं. परचेसेस अकाउंट डेबिट 9 lakhs. 2, कैश दी होती तो टू कैश, चेक दिया होता टू बैंक, बट ये क्रेडिट है, कुछ लिखा नहीं है तो क्रेडिट है. तो राइट, तो यहां पे लिखो वाई पेड अमाउंट आफ्टर 5% CD, राइट, आफ्टर 1 month. मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा. नहीं तो आप बोलोगे सर आपने लिखा है वाई ने पेड भी किया है, बाद में पेड किया. ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट 9 lakhs टू एक्स 9 lakhs. एक चीज और याद रखना हमेशा, एक्स के बुक्स में एक्स का अकाउंट कभी नहीं हो सकता, वाई के बुक्स में वाई का अकाउंट नहीं हो सकता. एक्स के बुक में बाकी लोगों का अकाउंट, वाई के बुक्स में बाकी लोगों का अकाउंट. सो एक्स के बुक्स में वाई का अकाउंट आएगा, वाई के बुक्स में एक्स का अकाउंट आएगा. खुद के बुक्स में खुद का अकाउंट मतलब कैपिटल, खुद के बुक्स में खुद का अकाउंट मतलब कैपिटल या ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट, क्लियर यहां तक? आगे ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 lakhs 9 lakhs. ठीक है, अब हमें हमारे लिए वाई डेटर है, हमें वाई से कितना लेना है? 9 lakhs. बट वाई क्या करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वाई हमें 9 lakhs देगा नहीं, वो शायद से जल्दी पे कर रहा है हमें, वो हमें जल्दी पे कर रहा है, इसलिए लेस CD एट द रेट ऑफ 5%. CD एट द रेट ऑफ 5%. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 5% CD देगा हमें, लगाएगा. सो 9 lakhs का 5% 45,000. 9 lakhs का 10% ढूंढो, लास्ट डेट हाइड करने का. 90,000 इज 10%, उसका हाफ चाहिए. 90,000 का हाफ 45,000. सो वाई, भले ही हमें वाई को हमने 9 लाख का सेल किया है, बट वाई हमें 45,000 कम पे करेगा. मतलब वो हमें देगा 8,55,000. कितना देगा? 8,55,000. दिस इज कैश रिसीव्ड और दिस इज कैश रिसीव्ड और पेड. सो एक्स
सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 9 लाख टू वाई, वाई हमें 9 लाख देगा नहीं, वो बोलेगा मुझे 5% डिस्काउंट देके, तो वी विल रिसीव कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कितना रे 8,55,000, कितनी कैश आएगी 8,55,000 आउट ऑफ हाउ मच 9 लाख, लॉस कितना हो गया 45, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो गया डेबिट 45। टू वाई अकाउंट क्रेडिट, वाई डेटर था अब डेटर नहीं रहेगा 9 लाख, वाई वॉज डेटर henceforth वाई विल नो लॉन्गर बी डेटर, डेबिट था 9 लाख क्रेडिट हो गया 9 लाख, बराबर है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 8,55,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 45,000 टू वाई अकाउंट क्रेडिट 9 लाख। देन अभी यहां पे देखते हैं कितना पे करना है 9 लाख, कितना पे करना है 9 लाख, चलो पे करते हैं, जब पे करोगे तो वाई एक्स को उल्टा करना होगा, वाई के बुक्स में एक्स को उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, डेबिट 9 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक, you are not going to pay 9 lakhs, you are going to pay only 8,55,000, remaining is discount received, 45,000, remaining is discount received, ठीक है 45,000। so now you can see x के बुक्स में, सॉरी x के बुक्स में y डेबिट था मतलब डेटर था, कोई बंदा डेबिट है मतलब डेटर है, और बाद में हमने उसको क्रेडिट कर दिया, y का अकाउंट क्लोज हो गया, इन द बुक्स ऑफ y, इन द बुक्स ऑफ y x क्रेडिटर है और बाद में उसको हमने डेबिट किया, एक्स क्रेडिटर है और बाद में हमने उसको डेबिट किया, क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया, वाई के बुक्स में एक्स का क्लोज, एक्स के बुक्स में वाई का क्लोज लिखो। अच्छा इसमें किसी का डाउट है तो पूछो, इफ एनीवन हैज डाउट अप टू नाउ। नेक्स्ट देखो, सेलर गिव्स डिस्काउंट टू बायर, इसलिए सेलर को कम पैसा मिलता है, जो कम मिला है वो डिस्काउंट लॉस रहेगा वो डेबिट करेगा, इनकम्स एंड एक्सपेंस सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, सो सेलर के बुक्स में डिस्काउंट अलाउड रहेगा डेबिट लॉस, बायर के बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा इनकम गेन क्रेडिट, ठीक है। अब आगे लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, क्या एग्जांपल है, हाँ अमर sold goods of rupees 50,000 to Prem, right, at trade discount of rupees, yeah, at a trade discount at 10% trade discount, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा, and after 1 month received money, after 1 month received 43,000 in full settlement, full and final settlement, आगे ठीक है, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट,
लेट्स कंटिन्यू सॉल्यूशन। मतलब क्या, पहले ट्रांजैक्शन हुआ 50,000 का, एमआरपी प्राइस इज 50,000, बट बुक्स में 50,000 रिकॉर्ड नहीं होगा, उस पर टीडी है, लेस टीडी, 10% टीडी। परचेस सेल 50 का नहीं दिखाएंगे, 5,000 माइनस करके 10% माइनस करके 45,000 का परचेस सेल दिखाएंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा इनवाइस वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा? इनवाइस वैल्यू। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बिकॉज वो 1 मंथ के बाद पे करने वाला है। एक्चुअली हमें उससे कितना लेना है? 45, बट उसने लिखा है आफ्टर 1 मंथ ही पेड 43,000, राइट? राइट। सो क्या लिखा है? आफ्टर 1 मंथ ही पेड 43,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ही पेड फुल 40,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जब भी लिखा जाता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, दिमाग में आना चाहिए। कितना लेना है? 45। अमर ने प्रेम को सेल किए 45 के, 45,000 के। अब हमारे लिए 45 का है। प्रेम बोलता है ये 43 ले इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब 45 के बदले 43 ले, 2,000 का डिस्काउंट अपने आप। मतलब यहाँ पे आ गया लेस सीडी 2,000, so it is 43, it is 43. This is right, you can say amount received or paid, received or paid as the case may be. सेल कितने का हुआ है? 45 का। परचेस कितने का हुआ है? 45 का। बट सेटलमेंट कितने पे हो गई? 43 इन फुल एंड फाइनल। वर्ड क्या है? इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जब ये वर्ड होगा तो ही सीडी रहेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अमर, इन द बुक्स ऑफ प्रेम, इन द बुक्स ऑफ अमर। अमर इज ए सेलर, उसके बुक्स में सेल की एंट्री आएगी एंड पैसे लेने की एंट्री आएगी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ प्रेम, उसके बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी, ये बायर है, उसके बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी और पेमेंट की एंट्री आएगी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। अमर सोल्ड गुड्स टू प्रेम, अमर सोल्ड गुड्स टू प्रेम, तो अमर के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी। प्रेम उसका डेटर हो गया, प्रेम टू सेल्स। 50,000 की एंट्री नहीं करनी है, ये इग्नोर करना है हमें, 45 की एंट्री करनी है, 45,000। टीडी कभी भी बुक्स में नहीं आता, मतलब टीडी के बाद की वैल्यू आती है टू सेल। क्या एंट्री आ गई? प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री आ गई प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, प्रेम के बुक्स में एंट्री आएगी, प्रेम के बुक्स में एंट्री आएगी परचेस की, परचेसेस एक्सपेंसेस डेबिट। और प्रेम के लिए कौन है? अमर। प्रेम परचेसेस अकाउंट डेबिट 45 टू, उसके लिए अमर क्रेडिटर है तो क्रेडिट करेगा अमर को। सेकंड, सो देखो अमर के लिए प्रेम डेटर है इसलिए डेबिट, प्रेम के लिए अमर क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट। तो रिया कोई डाउट है तेरा? योर इज दैट, आई विल अनम्यूट यू। नो, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अमर के बुक्स में प्रेम, प्रेम के बुक्स में अमर। अब अमर रिसीव्ड मनी 43,000 फ्रॉम प्रेम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 43। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 43। 2,000 का लॉस हो गया, डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा बिकॉज वो एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट होगा। अलाउड 2,000 टू प्रेम 45, 45 में से 43 आ गए, 2,000 का लॉस हो गया। 45 में से 43 आ गए, 2,000 का लॉस हो गया। आगे
यहाँ पे एंट्री आएगी, राइट, यहाँ पे एंट्री आएगी, अमर अकाउंट डेबिट 45, अमर क्रेडिटर था, जब क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तब डेबिट करो, उसको कैंसिल करो। 2, कितना पेमेंट दिया आपने, कैश गोज आउट, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस 43, 45 में से 43 पेड किया, इंट्री टैली नहीं होगी, 2000 का डिफरेंस रहेगा, दैट इज योर गेन, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चेक करो, और आपका अकाउंट क्लोज होना चाहिए। देखो 45 लेने थे, डेटर था, 45 लेने थे, डेटर था, 45 आ गए, कैंसिल हो गया, 45 डेबिट 45 क्रेडिट, प्रेम के अकाउंट में 0 बैलेंस रहेगा। अमर क्रेडिटर था 45 का, हमने अमर को 45 दे दिए, जितना क्रेडिट था उतना डेबिट हो गया, अकाउंट कैंसिल हो गया, जितना क्रेडिट था उतना डेबिट हो गया, अकाउंट कैंसिल हो गया। आगे नेक्स्ट, मेक इट फास्ट। अच्छा, बिफोर आई इन टुडे सेशन, किसी के डाउट से तो पूछो इसमें। आई विल बी टेकिंग लेक्चर टुडे टुमारो एज वेल, सुबह ले लूंगा, बिफोर मैथ्स लेक्चर आई विल टेक माई लेक्चर, ठीक है। 9:10 9:15 को स्टार्ट करेंगे, आई विल टेक 1 आवर टुमारो, नॉट मोर देन दैट आई विल बी टेकिंग, ठीक है। एनीवन हैज डाउट, एनीवन हैज डाउट? हाँ, सम्स फॉर प्रैक्टिस आई विल शेयर, मैं कोई सम्स दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल सिंपल सम दे दूंगा, और फिर जीएसटी की अकाउंटिंग सीखेंगे, जीएसटी की भी सिंपल है, और फिर हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर, इफ ए गाय पुट्स 1 lakh capital in business, okay सर, ओके, इन अबाउट से फाउंडेशन ना, अरे वो उनका इन डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, खाली उन्होंने एक एक नोटिफिकेशन डाला है, दे आर गोना सेंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद इन 1 or 2 days। तो मैं उस सीए फाउंडेशन का जो कुछ भी ना, आई विल टेल यू, पहले वो आने दो, मतलब हमें भी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक प्रॉपर उनका एक प्रोसीजर आ जाएगी, सो दे विल इट शुड कम विद इन 1 or 2 days। बट क्या लिखा है आगे, बट ही विड्रॉज 1 lakh फॉर पर्सनल यूज देन, अच्छा उस देखो, उसने 1 लाख डाला और बाद में 1 लाख निकाला, उसका कैपिटल 0 दिखेगा बुक्स में, 1 लाख डाला, कैपिटल दिखेगा 1 लाख, ड्रॉइंग्स किया 1 लाख, सो एंड में ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, इसलिए उसका कैपिटल 0 दिखेगा। यस यस, अभी मैं दोनों लेक्चर्स अपलोड उनका लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, अरे वो ओनर है, वो कुछ भी कर सकता है। यस यस, आई विल अपडेट, ठीक है, सबका बोल देता हूँ, सीएस सबका क्या है जो बोल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।